Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in today's class. So today I have been asked to discuss some aspects of linguistics with all of you. So we are going to deal with the linguistics today. So first of all, can you people listen to me clearly, or there is any problem in listening? Clear, sir. Is there any problem in listening or not? No, sir, it's clear. Okay. No problem, sir. So first of all, we will discuss that what actually language is. So all of you are well aware of the definition of language, and you have been using language more than 25, 26 years if you have that in that phase of the age. So the simplest definition that language has, its language is basically a medium of communication. It can be a medium of discussion. It can be a medium of vehicle of communication. So in short, we can say that language is a medium of communication. So what actually language is a medium of communication, medium of expression, vehicle of communication. If you have something in your mind and you want to convey that particular thing to some other person, the medium, the vehicle that you people will use, that is actually language. So we can say that language is a vehicle of communication, language is a medium of expression. We can basically share our ideas, our thoughts, our feelings, desires, sentiments with some other people by using language. And the tool that we use in order to express that particular thought, that particular desire, that particular thing, that is called language. Hope you have got the basic idea of language. So we are supposed to discuss the important elements, important aspects of linguistics. So it's a quick session. So you should keep ready your pen and notebook for writing, for noting, jotting down the things that you are getting through this lecture. After that, we will discuss some definitions of language. So you can write one definition by Sapir. Sapir in 1921 defined language. अब मैं वो लैंग्वेज की डेफिनेशन बोलने लगा हूँ, अगर आप उसको क्विकली लिख सकते हैं तो यू कैन राइट. Language is primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, desires by means of a system of voluntarily produced symbols. I am going to repeat it again. Language is a primarily human. ये साथ आप लिखते जाएं कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली किसके लिए है? ह्यूमन के लिए है. Non-instinctive method of communicating ideas, and it's a non-instinctive. Non-instinctive, you understand that the things that is not basically in the instinct of a man, in instinct of a person, that is called non-instinctive. So language is basically non-instinctive, and communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbol. अब ये जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हम जो आइडियाज कम्युनिकेट कर रहे हैं,
वो सारे किसके जरिए से चल रहे हैं, किसके जरिए से बन रहे हैं? बाय अ सिस्टम। वो सिस्टम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। voluntarily produce symbols, the symbols that is being used in during the course of using language, during the course of discussion, those are basically bound by a system, and all the symbols, all the things that we are using during the course of discussion, they are running under a system, and those symbols which are produced voluntarily. तो अगर आपने नहीं लिखी तो मैं इसको दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन को, कि लैंग्वेज इज अ प्राइमरीली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. होप कि मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी और आपने कुछ लिख भी लिया होगा, और लिखने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको समझ भी लिया होगा। जी, शुड वी मूव फर्दर? Yes, sir. Okay. Then the basic thing is the types of language. You are well aware of the types of language, that there are two main types of language. One is the verbal language and the other is non-verbal. It can be said as a implied language and expressive language. तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है कि ऐसी लैंग्वेज जब जिसको बोलते हुए या जिसको कम्युनिकेशन करते हुए आप लोग अपने आर्टिकुलेटर्स यूज करते हैं, दैट इज एक्सप्रेसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. The second type is of non-verbal communication, non-verbal language or implied language. This is what, that when we express something through gestures, by using some sort of a gestures, movements, hand movements, something else. The best example of the non-verbal communication is actually the you can say the traffic signals. अब ट्रैफिक सिग्नल्स में उसकी मैं आपको बताता चलूं कि वहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको वहां पर रोक रहा है. जस्ट वहां पे लाइट्स लगी हुई हैं. व्हेन देयर इज अ रेड अलर्ट यू आर सपोज्ड टू स्टॉप ओवर देयर, एंड व्हेन देयर इज येलो लाइट इट्स मीन्स दैट यू शुड बी रेडी टू गो, एंड व्हेन इट्स अ ग्रीन you are given a signal to go. So there is no one over there who is talking to you, who is saying something to you, but you are getting that kind of stuff and you are getting the message from those signals. So this is one type of a non-verbal communication. Then we have used word communication time and again. So can anyone tell me that what communication is? Ji. What is communication? Yes, sir, we can communicate without using proper language. We can communicate by bodily gestures, by signals, without using specific words or language. Okay, that is a type of non-verbal communication, but we are talking just simply that what communication is. Communication is actually communication is delivering your message. And this is exchange of ideas. Whenever you want to convey or share the ideas with the other person. Ji. Communication is sir, when one person talks and the next person understands the concept of that talking, it means that this is called the communication complete. Then their communication completes. So we can say that communication is exchange of ideas,
and if one person is speaking and the other person is listening and understanding it, that is called communication. And communication is actually two-way process. Okay? It's not one-way traffic, it's a two-way process. If you are speaking and the other person is getting what you are talking to, then the process of communication is completed. If one person is speaking and the other person is not getting, whatever the reason is, then it will not be communication. So types of language are types of communication. There are two types of communication. One is a verbal and the other is non-verbal. Verbal is actually the type of communication in which we use our articulators, we use our tongue, speech organs, and the non-verbal by using different gestures, जैसे shrugging है, by using different symbols and things like that. After that, we will discuss some general characteristics of language. So I'm not going in in-depth detail of the different characteristics of language. I'm just going to give you overall idea of all the characteristics of language. The very first characteristic of language is a verbal, vocal, and language is a sound. You can write the characteristics and the detail that I'm going to discuss with all of you. Language is a verbal, ये मैंने आपको बता दिया है, vocal, and language is a sound. Because language is the organization of sounds of the vocal symbols, that's why it is called vocal and verbal, and it's a sound. It contains so many different symbols, sound symbols, and the other things. So the very first characteristics is language is a verbal, vocal, and language is a sound. We are not going to have any detailed question, any detailed MCQ on the different characteristics of language. You will only be given some type of characteristic, and you will be asked that in which category this characteristics fall. So the second important characteristic of language is a mean of communication. Mean of communication, I have discussed that whenever you have something in your mind and you want to convey that particular thing to some other person, that is called communication, and the thing that you are using for that sort of communication, that is called language. So language is a mean of communication. You can write more and more on this topic, but we are just confined to the simple characteristics of the language. Then comes, you can write the other characteristics, that is language is a social phenomenon. This is very important thing कि हम society में रहते हुए, human being as being a social animal, he is living in this world, and the people living in this world, they have been categorized, they have been divided and classified into various social groups. And in every social group, the people are using language in order to interact with one another. So keeping in view the society and the relationship of the people with the society and the usage of the language in the society, we can say that language is a social phenomenon. और ये आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स का जो आगे फर्दर उसकी डोमेन है एक लिंग्विस्टिक्स की, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से चीजें पढ़ेंगे. Then basically language is arbitrary. ये आप लिख लें, ये बहुत दफ़ा MCQ आया भी हुआ है कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल I'll tell you that what is arbitrariness of a language. Arbitrariness means that you can write the definition of arbitrariness and it can be set as MCQ in your final paper. और पहले भी बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है किसी भी लैंग्वेज की. तो ये ज़रा ध्यान से सुन लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है. आर्बिट्रेरीनेस की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट that there is no intrinsic relationship between a signifier and signified.
अब आप कहेंगे जी सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या चीज़ होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है उसका नाम। ठीक है जी। अब वो जो नाम है उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं होता, और इस रिलेशनशिप ना होने को आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे सामने एक चीज़ पड़ी है जो चेयर है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका ऑब्जेक्ट आपके जहन में है, इट हैज़ 4 legs 2 arms एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसका नाम है चेयर। अब चेयर और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझ आ गई बात की। अब रिलेशनशिप नहीं है लेकिन एसोसिएशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको चेयर का ही नाम क्यों दिया गया, ये देने वाले की मर्जी है। ठीक है जी। जो बाय नोम जिन्होंने नाम दिए उन्होंने इसको चेयर का नाम दिया। अगर वो इसको जो है बुक का नाम दे देते तो हम ये 4 legs वाली जो फॉर्मेशन है या जो ऑब्जेक्ट है उसको बुक कहते। ठीक है। सेम इज द केस, जैसे आपका नाम है, फर्ज करें अगर किसी का नाम सना है तो ये उनके पेरेंट्स की मर्जी है कि उन्होंने उसका नाम सना रख दिया। ठीक है। वो उसका नाम शबनम भी रख सकते थे, वो उसका नाम जो है वो कोई और भी रख सकते थे, रिमशा, रिदा, वट, या इसी तरह कोई जैसे मेल हैं तो उनका नाम। तो जब आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा तो उन्होंने आपकी शक्ल और नाम के दरमियान कोई ऐसी ममासलियत जो है वो नहीं देखी, रैंडमली जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वो आपको नाम दे दिया। ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपके नाम और आप एज अ ह्यूमन, आपके नाम और आप में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसी तरह ऑब्जेक्ट और उसके नाम के दरमियान लैंग्वेज में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और वो जो रिलेशनशिप नहीं होता उसको आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं, और लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है। ठीक है जी। तो सो this is the arbitrariness of a language. Hope you have got the idea of arbitrariness. Then comes cultural transmission. Language is basically a source of cultural transmission. याद रखें कि लैंग्वेज जब भी आती है वो अकेली नहीं आती। लैंग्वेज इज नॉट अ सिंपल फिनोमिनन, इट्स अ कम्प्लेक्स फिनोमिना, एंड लैंग्वेज डजंट कम अलोन, इट कम्स एज अ कंप्लीट पैकेज। लैंग्वेज जो है वो अकेली नहीं होती, लैंग्वेज जो है वो एक पूरा पैकेज होता है, एक पूरा जो है वो बैगेज होता है जिसके अंदर आपकी थॉट, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो है कल्चर, आपका रिलीजन, आपके नॉर्म्स, आपकी जो है क्या उसको कहते हैं, रिलीजन, नॉर्म्स, कस्टम्स, ये सारे लैंग्वेज के पैकेज में चीज़ें मौजूद होती हैं। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि लैंग्वेज कोई एक आम मामूली सी सिंपल सी चीज़ नहीं है। लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमिनन एंड इट कंटेन्स, it is a kind of a baggage, and it contains it gives the indication of your culture, thought, identity, religion, and things like that. So language is a way of cultural transmission. We basically convey culture, transfer culture from one generation to another generation through a language. तो लैंग्वेज के ज़रिए से हम जो है वो क्या करते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए से हम कल्चर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी। लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी आप कह लें। ठीक है जी। कि ये प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज है दैट आपने सुना होगा एक कि लैंग्वेज इज नॉट रिजिड, language is not static. ठीक है। there is always flexibility in a language and it is prone to improve, and various developments have been basically done on language and its developing phenomena, and it's flexible, and there are more things coming in the language. और जो पुरानी आपने देखा होगा
आपने चौसर को, सर ने आपको बड़ा अच्छा चौसर पढ़ाया होगा, उसकी इंग्लिश देख लें, शेक्सपियर की इंग्लिश देख लें, मॉडर्न इंग्लिश देख लें, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं, दैट थिंग्स बेसिकली मेक अ लैंग्वेज flexible. So there are so many other characteristics of language, but we will move on further towards some other topic. ये आप बाकी जो है आप सर आपके साथ जो नोट शेयर करेंगे या बुक शेयर करेंगे, उसमें से आपने ये चीज़ें देख लेनी है। Then comes अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से आई थिंक इट्स एनफ, वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स ऑन अ लैंग्वेज। तो मेरा ख्याल है कि कुछ आइडिया आपको हो गया होगा लैंग्वेज के हवाले से। तो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स। सो व्हाट एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स इज? हैव यू एनी आइडिया, एनी पर्सन हु कैन basically give us a simple idea of linguistics, that what linguistics is? Any person, only one person, please. Yes, sir. Yes, sir, I can. Study of language. Scientific study of language. It's called linguistics. The scientific study of language is called linguistics. Ji, very good. Scientific, the simplest definition of linguistics is a scientific study of language. ठीक है जी। अब हमारे पास linguistics की definition में दो चीजें हैं। एक क्या है, वो है आपकी scientific study, and the other thing is language. Language के ऊपर हमने बहुत सी discussion कर ली है कि language is a mean of communication, language is basically a medium of communication, conversation, vehicle of communication. अब हम बात करेंगे scientific study की। देखें, एक क्वेश्चन आपने अगर जिन्होंने ऑप्शनल में लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है या जिन्होंने एमफिल लिंग्विस्टिक्स में किया है, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी कि लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स साइंस कैसे है? क्योंकि द वेरी डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब थोड़ा सा हम साइंटिफिक स्टडी को देखेंगे कि वो एक्चुअली है क्या और कैसे ये डिफर करती है बाकी जो है वो स्टडीज से। आपने मैट्रिक में अगर साइंस पढ़ी है, ऑब्वियसली पढ़ी होगी, कईयों ने मैट्रिक साइंस के साथ किया है, तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसका एक अपना प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो है एक आपकी ऑब्जर्वेशन के बाद आप स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के बाद डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस के बाद हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, और फिर वो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव होता है या रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज। तो सो जब हम लैंग्वेज को साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। होप यू हैव गॉट द आइडिया कि जब साइंस लैंग्वेज को साइंसी बुनियादों पर पढ़ा जाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी जाएं, उसके हवाले से हाइपोथेसिस बनाए जाएं, उसके हवाले से हम जो है वो डिडक्शंस करें, तो वो आपकी लिंग्विस्टिक्स कहलाएगी। और इसको उर्दू में कहते हैं इल्मे लसानियात, ज़बानों का इल्म। तो सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स। देन कम्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बहुत से हैं, हम यहाँ पे थोड़े से उनकी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में पहले आए भी हुए हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने टर्म सुनी होगी सिंक्रोनी और डाइक्रोनी। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, या इसको आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। So if you will be able to understand the basic concept of synchrony and diachrony, तो उसको साथ linguistics attach कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम जब बात करते हैं सिंक्रोनिक की या सिंक्रोनी या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, तो सिंक्रोनी लिख लें। सिंक्रोनी इज द स्टडी ऑफ
समथिंग, बिकॉज वी आर डूइंग ऑन लिंग्विस्टिक्स, तो हम लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि जब हम लैंग्वेज को या लिंग्विस्टिक्स को किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं तो उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है जी। और डाइक्रोनिक का दूसरा नाम जो है वो है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स सॉरी। डाइक्रोनी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, दोनों में डिफरेंस है, with the passage of time and within the given period of time। तो with the passage of time का मतलब है जैसे आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं उसमें लैंग्वेज भी है, जैसे एंग्लो सैक्सन से आगे एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा, फिर रिनेसां, रिफॉर्मेशन, जो भी आपने एजेस पढ़ी हैं। अब अगर तो आप लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड की या एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी सिंक्रोनी। ठीक है जी। और जब आप एंग्लो सैक्सन को भी पढ़ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं, एंग्लो नॉर्मन की लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं, चौसर की लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर की लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं, आगे जो है आपकी रोमांटिक एज की लैंग्वेज, विक्टोरियन एज की लैंग्वेज, आगे मॉडर्न एज की लैंग्वेज को जब आप इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स या डाइक्रोनी। ठीक है जी। होपफुली के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंक्रोनिक जो है वो हॉरिजॉन्टल स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और डाइक्रोनी जो है वो वर्टिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। वर्टिकली जब हम देखते हैं तो उसमें स्लैब्स बनते हैं, पहला स्लैब एंग्लो सैक्सन का, उसके ऊपर स्लैब एंग्लो नॉर्मन का, उसके ऊपर स्लैब आपका मिडल एज का, उसके ऊपर स्लैब आपका रेनेसां का। ठीक है जी। ये 4-5 स्लैब्स हमने बना दिए। जब हम एक स्लैब को स्टडी कर रहे हैं तो हम डाइक्रोनी कर रहे हैं। अगर हम उन 4-5 स्लैब्स को एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे हैं तो वो डाइक्रोनी कहलाएगी। होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी। और इस पे क्वेश्चन कई दफा आया भी हुआ है कि सिंक्रोनिक हॉरिजॉन्टल होती है या डाइक्रोनिक हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है। तो सिंक्रोनी जो है वो हॉरिजॉन्टल स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो लैंग एंड पैरोल का है। ये जो है फर्डिनेंड डी सेसो का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सी बुक्स ने जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो सिंपली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप लिख लें। पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। एक होता है कि बोलने से पहले आप क्या करते हैं, आप सेंटेंसेस को तरतीब दे रहे होते हैं और ये जो तरतीब या सीक्वेंसिंग जो है वो आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। वो जब आप सीक्वेंस वर्ड्स का चुनाव, फिर आप टेंस का चुनाव, फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर लगाकर फिर आप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। ये इतना रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्स एक्शन जिसे आप कहते हैं वो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता पीछे ये पूरा प्रोसेस लैंग्वेज का माइंड में चल रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक है। तो लैंग जो है, लैंग इज अ टोटलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन द माइंड ऑफ ह्यूमन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो इंसान के पास लैंग्वेज का नॉलेज है टोटलिटी में, होलिस्टिक व्यू है। ठीक है। लैंग का कि आपके माइंड में, मेरे माइंड में, दूसरे बंदे, तीसरे बंदे, चौथे बंदे, दुनिया में मौजूद हर बंदे के माइंड में लैंग्वेज का जो नॉलेज है टोटलिटी में उसको लैंग कहते हैं। ठीक है। और ये फर्डिनेंड डी सेसोर का कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद है पैरोल। अब लैंग की अगर आपको समझ आ गई है तो पैरोल की भी आपको समझ एक सेकंड में आ जाएगी कि द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग इज कॉल्ड पैरोल। दोबारा बोल रहा हूं, द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग इज कॉल्ड पैरोल। ठीक है जी। अब समझ लें इसको कि बोलने से पहले माइंड के अंदर जो नॉलेज है, माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो लैंग है। जब आप उसको बोल देते हैं तो वो पैरोल बन जाती है।
और ये याद रखें फर्डिनेंट डी सेसोर के हवाले से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ जो पैरेलल कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। दोनों में फर्क सिर्फ होलिस्टिक और इंडिविजुअल व्यू का है। और कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय नॉम चॉम्स्की। वो नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट था। इसमें कॉम्पिटेंस वही लैंग है और परफॉर्मेंस वही पैरोल है कि जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस एंड द परफॉर्मेंस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। अब फर्क क्या है दोनों कॉन्सेप्ट्स में? फर्क है होलिस्टिक व्यू का और इंडिविजुअलिटी का। लैंग जो है वो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन टोटलिटी है और कॉम्पिटेंस है इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। पैरोल जब हम बोलते हैं तो वो पैरोल कहलाता है। ओवरऑल देखें तो वो पैरोल है। जब स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन पर्सन बात करें तो वो परफॉर्मेंस है। क्लियर होगी जी बात? तो ये दोनों में इसमें सवाल आपको आ सकता है कि कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वो उसका नाम मैंने आपको बताया है चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की, अ ग्रेट पायनियर लिंग्विस्ट है, अभी भी हयात हैं। और लैंग एंड पैरोल का कॉन्सेप्ट फर्डिनेंड डी सेसोर, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। वो ऊपर मैंने थोड़ी सी डिस्कशन आपके की थी कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंस कैसे है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम लैंग्वेज के ऊपर तजर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, लैंग्वेज को सब्जेक्ट मैटर के तौर पर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ थेरीज बनाते हैं। इसलिए लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंस है और इट टचेज विद द वेरियस फील्ड्स ऑफ प्योर साइंसेस। लिंग्विस्टिक्स जो है वो उसका इंटरेक्शन जो है वो फिजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा है। अकूस्टिक फोनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजी के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ये मतलब लिटरेचर के साथ भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स जो है वो जो साइंस है, लेकिन इसको इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि ये साइंसी तरीकाकार है। ये साइंसी जो है वो मेयार के ऊपर चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हुए इसको जब स्टडी किया जाता है तो ये साइंस कहलाती है, ठीक है जी। तो वी हैव लेस देन 1 minute. इफ यू हैव any problem you can ask that. In the next session we will move further. Assalamualaikum sir.